Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, and also expected that you would have kept yourselves indoors because that is the only way to get rid from this pandemic. My dear students, as all of you would know that I'm here delivering these classes through videos for the last 15 days. And honestly speaking, this would not have been possible without your concentration, without your time, without your support. So I'm very much thankful to all my dear students for giving their concentration, for giving more and more time to their studies. And we need to do it. My dear students, you need to do that. Moreover, whatever we are facing, you know this pandemic, this COVID-19 has created panic not only in our country but throughout the world. So we need to mentally prepare ourselves to keep indoors. We need to mentally prepare ourselves to remain away from our friends, colleagues. Yeah, it's very much difficult for us to remain away from our relatives, friends, colleagues. But the demand of the situation is to follow the preventive measures, to follow the precautionary measures. And my dear students, have faith on Almighty Allah. उसी पे भरोसा रखो. इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें इस वबा से छुटकारा मिलेगा. बहुत जल्दी हमें दोबारा मिलने का मौका मिलेगा. लेकिन till then we need to adopt. We need to follow the preventive measures. We need to confine ourselves to our homes. लेकिन एक बात मैं बार आप लोगों से कहता आया हूँ, confined to our homes doesn't mean that we need not to give our time to our studies. Yeah, we need to give more and more time to our studies. ये एक opportunity भी हमारे पास की, खासकर आप बच्चों के पास एक मौका है कि आप आज ज़्यादा टाइम आप अपने किताबों के साथ सर्व कर सकते हो. And I expect that you have been given the time to your studies, and you need to do the same in your future. So my dear students, coming on the topic, it is conjugation of verb. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने verb और इसके kinds भी पढ़े हैं, फिर हमने participle, फिर हमने tense के बारे में. लेकिन tense का मैं बताना चाहूँगा कि you know that there are 3 forms of tenses, that is present, past and future. Present means जिसमें यानी कि in which the action is taken place in the present, यानी कि जिसमें कोई काम होता होगा present में. For example, I go to school. This is present tense. अगर हम past की बात करें, I went to school, in which the action has taken place, जिसमें एक काम हो चुका होगा, that is past. Future, action ना हुआ है, ना हो रहा है, बल्कि होने वाला है. The action is going to take place in future. I will go to school. These are the 3 forms of tenses. Then हमने ये भी देखा कि each of these 3 forms have been subcategorized, have been categorized into 4 different forms. That is indefinite, another one is continuous, third one is perfect, fourth one is perfect continuous. Indefinite आप लोगों ने पता है कि एक ऐसा काम ना, इसका मतलब ये काम कब हुआ है, या सिंपल भी इसको कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, यानी कि ये जो अलग सिंपल अगर ये प्रेजेंट के साथ भी है, पास्ट का भी है और ये फ्यूचर का भी है. इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बोला, each of these 3 forms है further categorized into 4 different forms या 4 different types. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट, या अगर चलो प्रेजेंट का नाम नहीं देंगे हम इसको, इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे, इंडेफिनिट मीन्स काम कब हुआ है, काम कब खत्म होगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. बस फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, बकार गो स्कूल, बकार तान छु स्कूलस मज, बकस बचस गुमुत, यह काम चला, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. दैट इज इंडेफिनिट. इसी तरह से अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, जिसमें काम चलता है, कंटिन्यू हो चुका, लेकिन ये काम कार स्टार्ट, ये काम कार गैस खत्म, डोंट नो एनीथिंग, लेकिन इतना पता है कि काम अभी चलता है. परफेक्ट मीन्स काम कंप्लीट गमस, आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम किया है. परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कि सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, लेकिन अभी और कोई हिस्सा यानी कि बेच का था चालान. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग. I have been doing, have plus been हम इसको करते हैं, और ing form of work. This is about tenses and its different forms. फिर हमने पिछले क्लास में we read about participle. You know participle क्या कहते हैं? When we add ing to any verb, जब हम ing किसी भी verb को add करते हैं, it makes a verbal adjective, या it makes a participle. The second name of participle is verbal adjective as well. That means ये पहले verb था, इसको मैंने ing add किया, ये अब
वर्बल एडजेक्टिव बन गया या पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स इन द पार्टिसिपल्स एज वेल, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल रेफर्स टू दोज एक्शंस व्हिच हैव नॉट बीन फिनिश्ड येट, द एक्शन इज गोइंग ऑन, जिसको हम फॉर एग्जांपल ये रिलेटेड है किसके साथ, कंटिन्यूअस के साथ। ये आज के टॉपिक का नहीं है, इसको मैं थोड़ा आपको रिपीट करवा रहा हूं। तो अगर हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हेन वी ऐड आईएनजी टू द वर्ब, फॉर एग्जांपल डूइंग, ईटिंग, डांसिंग, क्राइंग, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें काम अभी, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, द वर्क इज स्टिल कैरिंग ऑन, ये भी चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। अनदर वन इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, व्हेन वी ऐड डी, ईडी, टी और en टू द पार्टिसिपल्स या टू द वर्ब्स, जब हम वर्ब्स को ये लेटर्स ऐड कर सकते हैं। डी जब हम ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल फिनिश, या ईडी जब हम करेंगे फिनिश्ड, ये फिनिश था, इसको मैंने फिनिश्ड बना दिया, ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। या फॉर एग्जांपल यहां पर और एक है, मिसाल के तौर पर डी हम किसी को ऐड कर सकते हैं, ईडी कर सकते हैं, टी ऐड कर सकते हैं, और टू मेक देम पास्ट पार्टिसिपल्स। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है रेफर्स टू दोज एक्शंस व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड, जो अभी नहीं चलते हैं, जो ना चलने वाले हैं, चले वो ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, वी कॉल दीज एज पास्ट पार्टिसिपल्स। सो कमिंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, मैंने आपको इसीलिए पार्टिसिपल के बारे में बोला, मैंने आपको इसीलिए वर्ब के बारे में बोला। वर्ब क्या, एक्शन वर्ड्स, वी शो सम एक्शन, वर्ब इज अ वर्ड वी शो सम, जो किसी या उर्दू पर जो किसी काम के करने को जाहिर करे। For example, I am playing cricket, I am dancing, I am weeping, I am crying. All these words, crying, playing, dancing, represent any action या show some action, ये कोई action दिखाते हैं, इसको हम verb कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, my dear students, it is conjugation of verbs। अगर हम conjugation of verbs कहेंगे, इसको conjugation of verbs का मतलब क्या है कि किसी को कोई फॉर्म देना, किसी को कोई शक्ल देना। और अगर हम ये देखिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब जो है, अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वही की वर्ब क्या होगा, वी शो सम एक्शन। वर्ब हैज 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स, इसके लिए कंजुगेशन के लिए 4 फॉर्म्स है, प्रिंसिपल फॉर्म्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको बोला प्रेजेंट टेंस क्या हो, इन विच द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, यथ मज एक्शन चलान वुनकिनस प्रेजेंटस मज। I go to school, it is present tense। इसी तरह से past tense, जिसमें काम खत्म हो चुका है, I went to school, I had done my work, I did my work, that is past, that is पास्ट। गो प्रेजेंट मीन्स जिसमें काम प्रेजेंट में हो रहा हो, पास्ट मीन्स जिसमें काम खत्म हो गया हो, और उसके बाद है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैंने बोला कि व्हेन वी ऐड आईएनजी टू द वर्ब्स टू मेक देम पार्टिसिपल्स, टू मेक देम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिर पास्ट पार्टिसिपल जब हम ऐड करते हैं डी, ईडी या टी, सच काइंड ऑफ लेटर्स टू मेक द वर्ब्स एज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट द वर्क व्हिच हैज कंप्लीटेड। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया आपको, वर्क जो है ये कौन सी फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से वर्कड, ये क्या है, पास्ट टेंस। इसी तरह से वर्कड भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इस तरह से वर्किंग, दीज आर सम एग्जांपल। इस तरह से गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अगर हम देखें कंजुगेशन के लिए ये जो वर्ब्स हैं, इनके 2 मेन काइंड्स हैं कंजुगेशन। फॉर एग्जांपल फॉर द पर्पस ऑफ कंजुगेशन वर्ब्स आर डिवाइडेड इन 2 मेन काइंड्स। एक को हम स्ट्रांग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम वीक वर्ब्स कहते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि सर व्हाट इज स्ट्रांग वर्ब एंड व्हाट इज वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, for example, when we have to change the form of any verb, it's not a first form, second form या third form, या present tense, past tense, present participle, past participle। जब भी हमें कोई फॉर्म चेंज करनी होगी किसी वर्ब की, when we change the internal vowel of any verb, internal vowel किसी वर्ब की हम चेंज करने जा रहे हैं, these such kind of verbs are known as strong verbs। For example, let me give you an example, become, become, become। What is the internal vowel of this word? Is O। तो जब मैं इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना चाहूंगा, ये क्या बनेगा, became। That means the internal vowel of became changes, this was O and it changed into A। go become, became। इसी तरह से drink, drink,
अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा सेकंड फॉर्म में या पास्ट में, तो ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। तो इसी को दिस वर्ब्स या सच काइंड ऑफ वर्ब्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। क्या अब आपको क्या समझ में आया? व्हाट डज स्ट्रॉन्ग वर्ब मीन? स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज वर्ड्स व्हेन वी चेंज द इंटरनल वॉवेल ऑफ एनी वर्ब टू मेक इट past participle या to make its different forms are known strong verbs। यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है, are those which form their past tense or past participle by changing an internal vowel, become, became। इसी तरह से drink, drank and drunk इसकी थर्ड फॉर्म भी है। इसी तरह से वीक वर्ब्स का हम क्या कह सकते हैं? वीक वर्ब्स उन वर्ब्स को हम कह सकते हैं which form their past tense or past participle by adding, यानी कि ये अपना पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? व्हेन वी ऐड डी, ईडी एंड टी, वेदर और नॉट दे आर। ये जरूरी नहीं है कि अमतिकसन पर वॉवेल चेंज करें ना, ये कभी इन सच केसेस दे मे चेंज देयर वॉवेल्स एज वेल, इनमें भी अपने वॉवेल चेंज हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल द केसेस दे मे चेंज देयर वॉवेल्स ना। बट द कंडीशन हियर फॉर वीक वर्ब्स इज दैट ये अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? वर्ब्स को डी ऐड करते हैं, ईडी या टी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्न, BURN, बर्न, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अगर इसके सेकंड फॉर्म करेंगे बर्न्ड, दैट मीन्स U was the vowel in this word, but if we did not change the vowel, then we only added T to the second form। ये past बनाने का तो क्या होता है? T add था वही में burn O से बन गया burned। फिर इसकी थर्ड फॉर्म दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यही है burnt, यानी कि पास्ट टेंस भी यही है, पास्ट पार्टिसिपल भी यही है। गो हम गए ज वर्ब्स यम कंजुगेशन में या जिसको हम कह सकते हैं वर्ब्स में वर्ब्स को दो मेन वर्ब्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम वीक वर्ब्स कह सकते हैं। और my dear students, you need to remember that there are about 110 strong verbs in our English language। तकरीबन 10। Some of the examples, for example, awake मेरा है, ये प्रेजेंट में, इसको मुझे पास्ट बनाना है, फिर मुझे पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, फिर मुझे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो गस याद आसन कि पास्ट क्या गो यथ मज गमस, यानी कि इन विच द वर्क हैज बीन डन। पास्ट पार्टिसिपल यही सेम एज पास्ट गो यथ मज फिनिश गमस कित वी मेक इट बाय एडिंग डी, ईडी और टी। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज सिमिलर टू कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस मीन्स व्हेन वी ऐड ing to verb, या continuous means in which the action is still going on, जिसमें अभी भी काम चल रहा होगा, we call such verb as continuous। इसी तरह से ये present participle भी उसी तरह से हैं। देखिए awake, तो ये these are the examples of strong verbs, remember it, these are the examples of strong verbs। awake मैंने अभी भी बोला, strong verbs are those verbs in which we change the vowel या internal vowel जब हम चेंज करते हैं इस वर्ब में, ताकि ये इसको पास्ट बनाने के लिए, पास्ट टेंस बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। देखिए ये अवेक था, इसमें इंटरनल वॉवेल क्या है? omit this, you say a w vowel, no, internal vowel is a, that is awake। इसको मैंने evoke बना दिया, that means I change the internal vowel a into o, तो ये बन गए एवोक। फिर मैंने अभी बोला आपको ये ऑलरेडी एवोक था, इसको मैंने एन ऐड कर दिया पार्टिसिपल ऐड कर बनाने के लिए। अभी जब मैंने आपको बोला डी, ईडी एंड टी हम कर सकते हैं, तो ये बन गया। और इतना ही नहीं, एन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एवोक, ये एवोकन। इसी तरह से अभी इसकी याद रखना, इसको आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना है। जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा तो आप प्रेजेंट को आईएनजी ऐड कर सकते हैं। ये अवेक था, लेकिन यहां पर ई चेंज हो जाएगा आई में, दैट मीन्स अवेकिंग। इसी तरह से बाइट, ये क्या, इसका इंटर वॉवेल क्या था? फॉर एग्जाम्पल ई था इसका वॉवेल, तो वो अमिट हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने इसको बिट लगा दिया। इसी तरह से बिटन, यहां पर बाइटिंग। इसी तरह से गेट, इसका इंटर वॉवेल ई, ये चेंज हो गया ओ में, गॉट इसकी पास्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? गॉटन या गॉट, इसका पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में गेटिंग इसका, ठीक है। ग्रो, ग्रो, इसका ओ मैंने ये इंटर वॉवेल है, तो इट विल चेंज, तो ग्रो इसको ग्रू में हो जाएगा। इसी तरह से ग्रून, ये पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी का इसको आईएनजी ऐड करना है, ग्रोइंग। दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट्स,
दिस वाज अबाउट कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। सो आप लोगों ने देखा कंजुगेशन में 4 फॉर्म्स हैं वर्ब की, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी बात, कंजुगेशन के लिए हमने वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, एक को हम स्ट्रांग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम वीक वर्ब्स कहते हैं। स्ट्रांग वर्ब्स में आप लोगों ने देखा कि स्ट्रांग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हेन वी चेंज द इंटरनल वोवेल ऑफ एनी वर्ब टू मेक देम पास्ट टेंस, टू मेक देम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो वीक वर्ब्स में आपने देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी वेदर और नॉट वी मे चेंज द इंटरनल वोवेल्स बट नॉट इन ऑल द केसेस। तो सीधा हम ये कर सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वी नीड टू ऐड डी, ईडी, टी और ईएन एट द एंड ऑफ ए वर्ब या और एट द एंड ऑफ ए वर्ब वर्ड। सो दिस वाज अबाउट कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। इंशाल्लाह मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, बिकॉज उम्मीदों पे दुनिया कायम है, आई कैन ओनली होप। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला, कल भी बोला, आज भी बोलूंगा कि शॉर्टकमिंग्स आ सकती हैं, क्रिटिक्स एंड एप्रिसिएशन बोथ आर वेलकम। मैं दोनों को वेलकम करूंगा यहाँ पे, बिकॉज क्रिटिक्स जो है when it is for constructive purpose we must welcome it, and inshallah I know कि whenever any of my student may criticize, whenever any of my student may raise any question for my class, that question, that critique may be for constructive purpose. So dear students, appreciation जो है वो भी वेलकम है, बिकॉज ये हमारे इस मॉरल को बूस्ट कर सकता है कि नहीं, yes we need to follow the same method. Dear students, different teachers have different methods. I am following my own method, some other teachers may follow their own methods, but the main trend, main motive of every of your teacher is to make their students make all of you understood what they are teaching. तो इंशाल्लाह उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और दूसरी बात ये कि इसको इसको एक एंजॉय करना चाहिए। जब इंसान एक एंजॉय करेगा तो इंसान को वो जो पॉइंट्स हैं वो मतलब ऑटोमेटिकली दीज ऑल द पॉइंट्स ऑफ द टीचर आर रिमेनिंग इन आवर माइंड्स व्हेन वी एंजॉय द लेसन। अदरवाइज गणित बोर गमते क्या करो इत इसको आप बोरडम नहीं समझना है, इसको आप ये एक मतलब खुशी से आप लोगों को अपना टाइम स्पेंड करना है इन वीडियोस को देख। जिस तरह आप गेम्स खेलने में टाइम स्पेंड करते हो खुशी, जिस तरह आप कोई मूवी देखने के लिए खुशी टाइम स्पेंड करते हो, व्हाट्सएप चलाने के लिए यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम मतलब बाय योर ओन विल, एंड इसको भी उसी में इंक्लूड करो। वहां का टाइम कट ऑफ करो और गिव मोर एंड मोर टाइम टू दीज वीडियोस। इंशाल्लाह दीज वीडियोस आर फ्रूटफुल फॉर यू, दीज वीडियोस में इंक्रीज योर नॉलेज। इंशाल्लाह हमारा यही मोटिव है। we have always tried our level best, we are trying our level best to increase the knowledge of our students. That is the only way, that is the only motive for our teaching. So इंशाल्लाह कल किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। Till then you need to take care of yourself, of your families. और दूसरी बात, नमाज पढ़िए, नमाजों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए। अल्लाह को बच्चों की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बच्चों का तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है अल्लाह को, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मैंने बोला भी है, इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग अपने लिए भी, पूरी उम्मत के लिए, मेरे लिए दुआ करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया हमारे पास वही एक हथियार है। हमारे पास इस वक्त हम निहत्ते हैं, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है एक्सेप्ट दुआ ही हमारे पास हथियार है। दुआ में याद कीजिए अपने उस्तादों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, अपनी पूरी उम्मत को, पूरी सोसाइटी को। इंशाल्लाह वी मे गेट rid from this pandemic. So dear students, at the end of this lesson I once again request you, take care of yourself, take care of your families, give more and more time to your studies. Remain confined to your homes, or remain attentive to your all the videos, to all your subjects. And if any confusion is there in your minds, clear all your confusions through phone calls, or you can text me at any time. I'm here. I am always, inshallah, I will always be at your disposal. Wherever you call me, you text me, inshallah, I will be ready to help you. And I will be not only ready, because I must say that I will be very much happy if I can help you, if I can guide you in any way, or I will say by one way or the other. So कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, अपनी दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।